Welcome to the math class, my dear students. In this lecture, we will discuss the remaining question of exercise 3.2. The previous lecture, I already discussed the question number 1 to question number 5. In this lecture, we will study the question number 6 to question number 10. Lesson number 6 is that two sets are given, U and A. We have to calculate the three parts. The first part is that we have to prove that A union A complement is equal to U and A intersection U, which is equal to A, and A intersection A complement is equal to empty. Start from the part number 1. The statement of part number 1 is that A union A complement is equal to U. To solve this part, we have to calculate, first of all, we have to calculate the complement of A. Then we find the complement and union of A. How to calculate the complement of A? I already told you that in the previous lecture. Complement is calculated by the difference of universal set and the given set. A complement is equal to U minus A. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप कैलकुलेट करें तो बेटा वो हमेशा always difference from the universal set. The element of a universal set is that 1, 2, 3, 4 up to so on. Similarly, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last element is 20. Now minus A, the element of A is that 1, 3, 5 up to so on. Basically, the set of the element of set is odd numbers that start from the 1, and the last element is that is the 19. Now minus the element of U from the set A. The first element is 1. 1 is already in the set A. It means the 1 minus and that is not included in the complement of A. In complement of A, only those elements are included which are not part of the set A, but a part of the set universal set U. The first element that is not part of the set A is that 2, and the second element 3 is already part of the set of A. It means 3 minus and not included in the complement of A. The second element that is included in the complement of A, which is equal to 4. The third element is 6, then 8, 10, 12, up to so on. You can observe that the set of A is basically the odd numbers from 1 to 19, and the universal set is the all first 20 natural numbers. It means that when you calculate the complement of A, the odd numbers should be minus, but the even numbers are left. That is included in the complement of A, which is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and last one is that 20. This is the complement of A. Now calculate the union of A union complement of A. The operation union is basically combine the two sets and that is and written in the form of single set. The union of A and complement of A. What is the set of A? 1, 3, 5 up to so on 19. Union A complement, which is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and 20. In the union of two sets, basically we combine the two sets and write an order, write a single set. When you combine the A and the complement of A, in the set of in the element of set A, basically the set of odd numbers starting from 1 to 19, and the complement of A is basically even numbers. When you combine the even and odd numbers, basically we get natural numbers that are included in these two sets. तो यहाँ पर A complement और union का जो complement निकालें, combine करना है elements को. The first element should be 1. The second element is 2. Basically 2 is in the complement of A, but not in the set of A.
but union, in the operation of union, we write both of the elements of set A and the complement of A. That's why the second element is 2, the third one is 3, 4, up to so on. Similarly, इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और लास्ट वन हमारे पास 20 होगा। तो हमने यहाँ पर बेसिकली ये प्रूव करना था कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A विच इज इक्वल टू U। अब ये जो सेट निकला है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो देखा जाए क्या मेरे पास ये सेट ऑफ U के एलिमेंट्स नहीं है। इट मीन्स यहाँ से ये बात प्रूव होती है तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से कैलकुलेट हो गया। द सेकंड पार्ट इज दैट just take the intersection A and U which is equal to A. Now calculate the second part. The statement of second part is that A intersection U is equal to A. Just calculate A intersection U. First of all, we write the set of element of set A, which is 1 3 5 up to so on 19. Intersection U, the element of U is first 20 natural number 1 2 3 4 up to so on 20. अब इन दोनों सेट्स को हम कंबाइन करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को देखा जाए तो आपने देखना है कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट सेम होंगे वो लिखे जाएंगे इंटरसेक्शन के अंदर। A इंटरसेक्शन U, द फर्स्ट एलिमेंट 1 यहाँ पर भी आ रहा है, सेट के अंदर भी है तो नेक्स्ट वाले में भी गिवन है। इट मीन यहाँ पर ये दोनों लिखे जाएंगे। एक तो पहला एलिमेंट मेरे पास 1 आएगा। अब देखें ये जो A वाला सेट है ना, ये सारे एलिमेंट यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पर इवन और ऑड दोनों का मिक्सर है, लेकिन फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं, बट इसके आपके पास सारे एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं कर रहे। तो पहला एलिमेंट जो कॉमन है वो 1 है, फिर 3 भी होगा, 5 भी होगा, अप टू सोन इसी तरह से मेरे पास 7 भी आना है, 9 भी आना है, 11 भी आएगा। ये सारे एलिमेंट्स चलते जाएंगे 19 तक हमारे पास इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ से ऑब्जर्व करके देख लें कि हमारे पास जब मैंने A इंटरसेक्शन U निकाला है तो ये बेसिकली सेट ऑफ एलिमेंट्स की जो है हमारे पास इसके जो आए हैं, तो ये सेट ऑफ A के एलिमेंट्स नहीं है। देखिए ना, A का जो सेट था 1 3 5 7 अप टू सोन इसी तरह से 19 तक था, तो इसका सोल्यूशन भी तो यही आया। इसका मतलब बात प्रूव होगी कि A इंटरसेक्शन U निकालते हैं तो बेसिकली वो A के ही इक्वल आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्ट इज दैट A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये बात हमने प्रूव करनी है। अच्छा, मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट जो कि निकाल भी सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ जो कि पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला था A वाले सेट का। तो उसमें देखो बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इवन नंबर्स आए थे जो कि 2 से लेकर 20 तक थे, उस चीज़ को मैं यूज़ कर लूँगा। अब इसमें हमें जो वेरीफाई करना है कि A कॉम्प्लीमेंट A intersection A complement. First of all, we write the element of set A, which is 1 3 5 up to so on 19. Intersection A complement. The element of A complement is basically the set of even numbers start from the 2 and 4 6 8 up to so on. The last element is 20. Now calculate the intersection of these two sets. You can observe that there is no element that is common in those two sets, because the set of the element of set A is the even odd numbers and the complement of A elements are set of even numbers. There is no element common in these two sets. That's why the A intersection A complement is equal to empty set. तो ये बात हमने प्रूव करनी थी, तो बेसिकली यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है A intersection A complement is equal to empty set. 7. It's applications of the sets from question number 7 to onward. The statement of question number 7 is that in a class 55 students, it's a question number 7. In a class 55 students, 34 students like to play cricket and 30 like to play hockey. Also, each students like to play at least one of the following two games. How many students like to play both games? आपने जस्ट ये बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हमारे पास दोनों गेम्स को जो है वो लाइक कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं ऑब्जर्वेशंस निकालता हूँ यहाँ पे फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन
नंबर 7 फ्रॉम स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट से मेरे पास क्या क्या चीज़ें आपके पास ऑब्जर्व हो रही हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली 55 स्टूडेंट्स, एंड हमने उन दोनों स्टूडेंट्स को जो है वो बेसिकली डिवाइड किया है। कुछ हमारे पास हॉकी को प्ले कर रहे हैं, कुछ क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 55। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जो यू है यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कह देता हूँ जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास एक सेट को नाम दे देते हैं। ए सेट है ऐसे स्टूडेंट्स का हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, हु लाइक टू प्ले cricket. The set A is the students who like to play cricket. The set B is that those students who like to play hockey, who like to play hockey. Now स्टेटमेंट से अगर मैं यहाँ से ये बात निकालूं कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए और बी के, और ये जो मेरे पास हैं आपके पास ए जो 55 स्टूडेंट्स हैं ये दोनों सेट्स का कंबाइन है। तो दोनों सेट्स के कंबाइन को बेसिकली किस तरह शो किया जाता है, ए यूनियन बी के साथ। और यहाँ से स्टेटमेंट्स में से मुझे पता चलता है कि ए यूनियन बी यानी कि दोनों को कंबाइन किया जाए तो टोटल एलिमेंट्स आते हैं यानी कि वो बेसिकली 55 आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो ए वाला सेट है यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स का है हु लाइक टू प्ले, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट को प्ले कर रहे हैं वो 35 है। तो यहाँ से अगर मैं बात निकालूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए which is also called the cardinality of set A is 34. The cardinality of set B, those students who like to play hockey are 30. Now just calculate the those students who like to play both games which is represented as intersection of A and B. जब दोनों स्टूडेंट्स को हमने कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है बेसिकली हम ये चीज़ निकाल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस चीज़ को हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स के अंदर एक फार्मूला है, प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। ये 2 सेट्स के ऊपर भी होता है, 3 सेट्स के ऊपर भी होता है हमारे पास। तो व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इंक्लूजन इन ए इंटरसेक्शन बी? प्रिंसिपल of inclusion and exclusion. The formula is that number of elements of A union B is equal to number of elements of A plus number of elements of B and minus number of elements of A intersection B. Where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament, a moment of peace. यहाँ से हम देखें कि मेरे पास हमने चूंकि इस चीज़ को निकाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी के, ये टोटल एलिमेंट्स हैं ना, दोनों सेट्स को कंबाइन किया हुआ। यानी कि स्टेटमेंट में यही था ना कि यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि टोटल हैं वो हमारे पास 55 है। तो 55 को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया था, ए और बी के अंदर। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो कार्डिनलिटी जो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स की है तो बेसिकली मेरे पास कितनी आ रही है, 55। और 55 है तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो जस्ट 34 हैं, और बी के एलिमेंट्स कितने हैं, विच इज़ 30। ये तो मैंने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस चीज़ को निकाला जा रहा है। अच्छा, इसके बाद 55 देखें, ये जो है बेसिकली यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँगा इक्वल करके प्लस हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 34 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 64। हमने सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है कि इसके एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी के। तो देखें यहाँ से ये 55 पॉजिटिव है, वहाँ पर जाके माइनस होगा,
number of elements of A intersection B is equal to the 64 minus 55. The 64 minus 55, which is equal to 9. It's mean the number of elements that those students who like to play both cricket and hockey is 9. अब यहाँ पर देखिए मैंने इसकी डायग्राम भी शो की है, वैन डायग्राम, हाउ टू रिप्रेजेंट इन द वैन डायग्राम. रेक्टेंगुलर बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज द यूनिवर्सल सेट U. अब ये पता चल गया ना कि ये सर्कल A का है, ये A B का है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये पोर्शन ऐसा है जो A का भी पार्ट आ रहा है और B का पार्ट भी आ रहा है. इट मीन ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. यानी कि यहाँ पर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, यानी कि क्रिकेट को भी लाइक कर रहे हैं और हॉकी को भी लाइक कर रहे हैं. तो उस चीज़ को मैंने कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स व्हिच इज 9 एलिमेंट्स. इट मींस दैट देयर इज आर 9 स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ ए एंड क्रिकेट एंड हॉकी. अब टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने थे ए वाले सेट के, वो 34 थे. इसका मतलब ये 9 तो रिप्रेजेंट हो चुके हैं. ए वाले सेट में बाकी जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे वो बेसिकली 25 रह जाएंगे. 25 और 9 को मिलाएंगे तो हमारे पास 34 हो जाता है. और बी वाले सेट के टोटल एलिमेंट्स 30 थे, तो यहाँ पर 9 तो कंबाइन है ना, तो बाकी जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी को प्ले कर रहे हैं वो 21 बचेंगे. तो टोटल मिलाएंगे तो इसके भी 30 हो जाएंगे. ठीक है, तो 30 इसके हैं, 34 इसके हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं आपके पास टोटल. क्लियर? अच्छा चलें बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें. यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 50 कैन स्पीक इंग्लिश एंड अब 50 कैन स्पीक उर्दू. अच्छा, इसमें उसने 500 एम्प्लॉयज को बेसिकली डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर. कुछ स्पीक कर रहे हैं उर्दू, कुछ इंग्लिश और कुछ पंजाबी स्पीक कर रहे होते हैं. तो मैंने यहाँ पर सपोजिशन किया फ्रॉम द स्टेटमेंट. ए वाला सेट मैंने ऐसा कह दिया कि मैं ए वाले सेट के अंदर ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जो हु स्पीक टू उर्दू, यानी कि ए सेट वो होगा जिसमें उर्दू वाले एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, और बी वाला सेट ऐसा है जो हु स्पीक टू लाइक इंग्लिश, एंड सी सेट हु स्पीक टू पंजाबी. अब स्टेटमेंट में से मैं अगर निकालूं तो यहाँ से उसने कहा ना कि 250 कैन स्पीक उर्दू. इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी ए वाले सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, वो 250 होंगे. इसी तरह से 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो बी वाले सेट को मैंने कहा ना ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्पीक कर रहे हैं इंग्लिश को, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट बी के हैं वो बेसिकली कितने होंगे, 150 होंगे. देन 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो 50 ऐसे लोग हैं जो कि स्पीक कर रहे हैं पंजाबी को, तो इसका मतलब है सी वाले सेट को मैंने कहा था ना स्पीक करो पंजाबी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी विच इज इक्वल टू 50. ये हो जाएंगे. उसके बाद आगे लिखा हुआ है 40 पीपल 40 एम्प्लॉयज कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश. उर्दू और इंग्लिश दोनों को वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों का क्या होगा, दोनों को कंबाइन करना है. तो इसका मतलब है एक ही ऑपरेशन है जो कि इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है. उर्दू और इंग्लिश, तो वो कौन सा सेट है, देखें ऑब्जर्व करें, ए और बी ही नहीं है. ए को मैंने उर्दू का नाम दिया और बी को इंग्लिश का. उर्दू और इंग्लिश को कंबाइन करें तो वो 40 स्टूडेंट्स है. तो इसका मतलब है वो कार्डिनलिटी शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी की विच इज इक्वल टू 40. ठीक है. उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास 30 ऐसे हैं जो स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी दोनों को वो बोल रहे हैं. इंग्लिश एंड पंजाबी वो बेसिकली बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो वो बी ए सी का इंटरसेक्शन 30 आएगा. 10 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी. उर्दू और पंजाबी की बात करें, उर्दू कौन सा है, ए वाला सेट, पंजाबी सी है. ए और सी का इंटरसेक्शन उसमें 10 एलिमेंट्स है. तो ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 500 है, तो उसमें से सारे के सारे एक लैंग्वेज तो एटलीस्ट बोलते हैं. ठीक है, मस्ट बी स्पीक वन लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज. इट मीन्स अगर एक लैंग्वेज वो बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो तीनों सेट्स को कंबाइन करें, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, वो बेसिकली 500 ही आएंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है. हमने क्या निकाला है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को जो है ना वो बोल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये 2 सेट्स के लिए भी होता है, 3 के लिए भी होता है. इससे पहले मैंने 2 सेट्स के ऊपर आपको बात बताई है, अब मैं 3 सेट्स के ऊपर बात यहाँ पर डिस्कस करने लगा. ठीक है. अब 3 सेट्स के ऊपर क्या है, वो कहते हैं कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टोटल, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी. अच्छा, इसको याद रखना बड़ा आसान है. ठीक है, ये टोटल एलिमेंट्स हैं तीनों सेट्स के. सबसे पहले आपने क्या करना है, तीनों सेट्स का जो कार्डिनलिटी है उसको प्लस करना है, ए बी सी इन सारों को प्लस करेंगे. फिर आपने माइनस करना है ए और बी का इंटरसेक्शन, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन, यानी कि सारों के आपस में इंटरसेक्शंस हैं ये तीनों सेट्स के, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, और फिर बी का सी के साथ, और ए का सी के साथ. देखिए ए माइनस इंटरसेक्शन बी हुआ, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट पे जब तीनों का इंटरसेक्शन प्लस होता है. ये तो कैलकुलेट करना है. ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो तो 500 है टोटल एलिमेंट्स है. ए के सेट के 250 थे, बी के 150 और सी के 50. माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो 40 है, 40 आ गया, माइनस 30, ए इंटरसेक्शन सी 10 है, और बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 30. अब इस चीज़ को निकालना है तो देखें यहाँ पर, अब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, अब इसमें देखें तो हमारे पास 250 प्लस 150 और 50 को ऐड करना 450 होता है. अच्छा, ये 40 10 50 और 30, ये टोटल मेरे पास 80 आ जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर ली, इसको थोड़ा हम दुरुस्त कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना 40 है और 10,
50 तीनों माइनस में है तो होंगे तो प्लस साइन माइनस करेगा, 50 और 30 ये तो 80 आ जाएगा, और 450 ये प्लस का था, इस साइड पे आ गया माइनस का, तो ये प्लस का 80 आ जाएगा। और इसमें जब आपके पास कैलकुलेशन होगी हमारे पास, ठीक है, 500 में से जब आप 450 को माइनस करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ऐसे आ जाएंगे 50, और 50 में जब आपने ऐड करना है बेसिकली हमारे पास किस चीज़ को, 80 को, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ से निकलेंगे 130। इसका मतलब है 130 स्टूडेंट ऐसे से वो आपके पास तीनों लैंग्वेजेस को जहाँ पर बोल रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट थी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर मैंने शो किया आपको क्वेश्चन नंबर ये 9 3.2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 90 पीपल वर ब्लू शर्ट्स, 15 वर ग्रीन शर्ट्स, 3 वर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स एंड 4 वर, अच्छा इसको मैं सेम उसी तरह से अभी जो क्वेश्चन 8 डिस्कस किया ना उसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर उसने 90 पीपल्स की बात की है ब्लू शर्ट, तो मैं यहाँ पर सपोजिशन कर रहा हूँ, लेट कर लेता हूँ ए वाला सेट ऐसा है हु वेयर ब्लू शर्ट्स, हु वेयर, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे पीपल्स, ऐसे लोग हैं जो कि ब्लू शर्ट को वो पहने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद 15 वेयर ग्रीन शर्ट, इसका मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रीन शर्ट्स को पहने हुए हैं। तो बी वाला सेट कह देते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स का हु वेयर ग्रीन शर्ट। उसके आगे बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है कुछ 3 वेयर्स ब्लू एंड ग्रीन, वो तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैप एंड ब्लू। इसका मतलब ये आप कैप एंड ब्लू की बात करें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कैप को सिर्फ पहने हुए हैं। तो सी वाला सेट यहाँ पर वो कह देते हैं ऐसे हैं जो हु वेयर कैप, जो कैप को उसने वेयर किया हुआ है, हु वेयर कैप, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कैप को अगर उन्होंने वेयर किया है, ठीक है, तो वो कितने स्टूडेंट्स बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर पहले इसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं। ए को हमने नाम दिया हु वेयर ब्लू शर्ट्स, तो 19 पीपल्स आर वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 19, एंड द कार्डिनलिटी ऑफ 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 ऐसे हैं जो ग्रीन शर्ट्स को वेयर कर रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स को बी वाले सेट का नाम दिया हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 15। उसके आगे लिखा 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ब्लू एंड ग्रीन कौन से हैं, ब्लू आपके पास ए सेट है और ग्रीन बी है, इट मीन्स दोनों वेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, वो जस्ट 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। उसके आगे लिखा 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, कैप और ब्लू, कैप का सी है और ब्लू शर्ट्स ए है, इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज रिटन एज 4 वेयर कैप एंड ब्लू, कैप एंड ब्लू वो 4 है। उसके आगे 2 वेयर कैप एंड ग्रीन, कैप एंड ग्रीन, ग्रीन शर्ट्स वाले हैं बी और कैप वाला सी, इससे आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, वो उसने कहा कि हमारे पास कितनी है, कितने वेयर, 2 वेयर्स कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, तो वो 2 आ जाएगी। उसके आगे देखें द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विद ईदर, यानी कि जो टोटल पीपल्स हैं, यानी कि जिन्होंने या तो ब्लू शर्ट्स पहनी है या ग्रीन शर्ट्स या कैप, तो टोटल जो है वो क्या बता दिया हुआ है, वो 25 है। तो टोटल को तो हम बेसिकली तीनों को कंबाइन करके निकालते हैं ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो किसके इक्वल आएगा, वो यहाँ पर हमारे पास है 25। अच्छा ये 25 यहाँ मिस्टेक है, 25 नहीं होगा, ये टोटल जो है वो 34 है, ठीक है, ठीक है। 20 ये बुक में मिस्टेक है, ये पॉसिबल नहीं होता, टोटल जो है वो 34 आएंगे। अच्छा इसमें ये अब उसके बाद उसने कहा हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी के निकाल रहे हैं। तो पढ़ाई आसान है, वही सेम प्रॉपर्टी निकालेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो होपफुली अब तो आपको याद हो गया होगा ना इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, यानी कि तीनों का जब आप यूनियन लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सी, फिर माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड लास्ट पे प्लस था तीनों का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने निकालना है जस्ट ए कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी, यानी कि सी वाली कार्डिनलिटी निकाल, तीनों को कंबाइन किया हुआ है तो वो कितने हैं, वो 34 है, ये 34 आ जाएगा। कार्डिनलिटी ऑफ ए विच इज 19, कार्डिनलिटी ऑफ बी वाला जो कार्डिनलिटी है वो 15 है, सी तो निकालना है ना,
ये कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन सी, A intersection C, which are 4 elements. B intersection C, B intersection C, B intersection C के 2 हैं प्लस। अच्छा ये देखें, ये तीन का कंबाइन देखें, स्टेटमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि तो आपके पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो तीनों को वेयर कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से आपने गौर कर लेना, अगर उसने ये बात नहीं लिखी कि आपके पास नो वन स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को मेंशन नहीं किया गया कि तीनों को वो वेयर करने वाले कोई स्टूडेंट नहीं, तो हम इसको ज्यूम करके चलेंगे भाई, अगर स्टेटमेंट में नहीं गिवन तो इसका मतलब है कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तीनों को वेयर कर रहा है, यानी कि उसने ब्लू शर्ट भी पहनी हो, ग्रीन शर्ट भी पहनी हो और कैप भी पहनी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है भी नहीं ना, ठीक है, या तो एक ही शर्ट पहनेगा, ग्रीन पहनेगा या ब्लू पहनेगा, ठीक है, या कैप पहनेगा, तो ये पॉसिबिलिटी तो है, तीनों भी पहन सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है उसने स्टेटमेंट में नहीं गिवन, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 0 एलिमेंट होंगे। तो ये निकालना है हमने, तो ये 34 है ए वाला सेट, तो इनको अगर कंबाइन किया जाए 19 और 15 34 बनते हैं, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी, ये बटे 7 और माइनस का 9 आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी, ये 34 है, ये बटे प्लस का 34 है, इधर आके माइनस 34 होगा, वो माइनस का 9 इधर आके प्लस होगा, तो ये 34 में से 34 में माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 34 0 और प्लस का 9। तो इससे पता चलता है कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैप को जो है वो वेयर किया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो गया। पर 10 की बात हम कर रहे हैं। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 10 इज दैट इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट्स, 19 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। अच्छा सेम वही बातें हैं, ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो एक ट्रेनिंग सेक्शन में लैपटॉप की बात है, टैबलेट्स की बात है और बुक्स की बात है। यहाँ पर एक को जो है वो सॉल्व करते हैं। लेट ए जो है ऐसे पार्टिसिपेंट हैं हु हैव लैपटॉप, जिनके पास लैपटॉप है। बी पार्टिसिपेंट हु हैव टैबलेट्स, and the set C is who have books. तो ये आपका आ गया। अब स्टेटमेंट से सरा उससे क्या, 13 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, इट मींस कार्डिनलिटी ऑफ A is equal to 17 and the 11 have tablets are set B, the cardinality of set B is equal to 9 और 11। उसके बाद आगे देखें 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स और लैपटॉप दोनों हैं उनके पास। लैपटॉप एंड टैबलेट्स कौन सा है, A इंटरसेक्शन B, कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is equal to 9 हो गए। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो A इंटरसेक्शन C is equal to 6। 4 have both tablets and books, B intersection C, वो मेरे पास 4 है। उसके बाद क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स इज 35। टोटल जो है ना वो यानी कि तीनों के पास वो बेसिकली कितने हैं, ऐसे हैं जो कि 8 पार्टिसिपेंट, आगे लिखा हुआ है, आगे ये स्टेटमेंट भी 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। तीनों के पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास तीनों आइटम्स पड़ी हुई 8 है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये तीनों है, तो इसका मतलब ये 8 है। आपने उसके बाद निकालना है ये, उसके बाद उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो तीनों के पास हैं, यानी कि लैपटॉप भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, यानी कि उनको कंबाइन किया जाए ना, A यूनियन B यूनियन C, वो बता दिया गया कि वो 35 है। अब आपने क्या निकाला, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट C निकलेगी, तो बड़ा ही आसान हो गया, ठीक है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ inclusion and exclusion। अब वो था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C which is equal to number of cardinality of A plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B
minus cardinality of A intersection C, cardinality of B intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C. The cardinality of A union B union C, which is equal to 35, A 17, B 11, C calculate करना है. Minus A intersection B, which is equal to 9, A intersection C, which is equal to 6, A B intersection C 4, and plus 8. जस्ट आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और सी इस साइड पे रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी. 35, ये प्लस का 17 है. अच्छा, इनको मैं अगर ऐड कर देता हूँ, 17 और 11 जब ऐड होंगे तो ये बेसिकली मेरे पास 28 आ जाएगा, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी. अब ये तीनों माइनस हो रहे हैं, माइनस का 9 और माइनस का 6, ये माइनस का 15 और माइनस का 19 प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से देखें कि 35, ये प्लस का 28 इधर आके माइनस 28, ये माइनस का 19 है इधर आके प्लस का 19, और ये माइनस का 8, विच इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी, यानी कि दो स्टूडेंट पीपल्स हु हैव बुक. अब 35 में से जब आप 28 को माइनस करेंगे तो बेसिकली मेरे पास 7 आता है, और 7 में आपने 19 को ऐड करना है, विच इज इक्वल टू 26, देन माइनस 28 को माइनस करेंगे तो बेटे याद आएगा 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया. तो ये आज के लेक्चर के लिए था. तो कल